And today's session is related to. Before going to join the session, I want to introduce myself. Is there any problem? No, ma'am, you can continue. Okay. Everything all right. I just want to introduce myself before going to start the session that I am Dr. Nazma Bibi and our today's session is related to the lesson plan. I am assistant professor in Government Islamia Graduate College for Women, Lahore, Kent. And I did my PhD from University of the Punjab in 2020. And I have been selected as assistant professor in government sector in 2017. And before this, I have 14 years private sector university experience in Lahore Garrison University. I am also a reviewer of more than 10 to 15 national journals and 3 to 4 international impact factor international journal. And I have 13 research publications till now from 2020 till now. Now, this was all about my introduction. And now we will start today's session, which is related to the lesson plan. Sorry, I think there is some internet connection problem. That's why slides are taking time to upload. I did my PhD in education from University of the Punjab and my area of specialization in educational administration. And I have also served as a principal in a government associate college for women, Sharakpur. In 2018, I have served as a principal. Okay, now slides have been uploaded. Now we are going to start the session. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. Our today's session is related to lesson plan. Before going to start the session, I will ask few questions at the end when you will be given a chance to ask about this. At the end of this session, I will ask from you people, respected teachers, that where do you stand? At the end of the session, you will let me know that where do you stand? Do you stand at the red signal, yellow signal, or the green signal? The red signal will reflect that you have no understanding of this session, of this topic. And this yellow signal will reflect that you have some understanding of this session or the lesson plan. And the green signal will let me know and you also know that you have understood the topic and you can explain the stages of the lesson plan to others. You will kindly remember it in your minds, respected teachers, that you, sir, respected colleagues and respected teachers, I will ask at the end, क्योंकि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो हम इसको देखेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है. बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपको आती होंगी, बट एट द एंड आप उसको इसको रिफ्लेक्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सेशन? फॉर एग्जांपल, आपकी जो पीएलटी है, इस ओवरऑल पीएलटी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसमें ईच एंड एवरी सेशन व्हिच यू आर टेकिंग daily basis, each session have certain objectives. And what are the objectives of this session? At the end of this session, you will be able to define lesson plan
and you will be able to describe the importance of lesson plan, that what is the importance of lesson planning. And the third point is, at the end of this session, you will be able to describe the principles of designing a lesson plan, that how to design a lesson plan. That then next objective is outline of lesson plan process. You will be able to understand the process of how a lesson plan, that what are the different outlines of a lesson plan. And at the end, you will be able to prepare a lesson plan. Next, all slides are visible. If you have some internet connection problem, then it will be difficult for you, respected teachers. Slides are, I think, visible. Kindly आप इसको चेक कर लें, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ सर, जो भी IT पर्सन है, कंसर्न जी पर्सन मैम, है, आप मैं स्लाइड आपको शेयर कर दीजिएगा। सेकेंडरी स्लाइड्स मैं विजिबल है अभी सारी। कर दूं कि क्योंकि अभी टीचर्स बीच में ही मैसेजेस कर रहे हैं, तो नहीं डजंट नहीं लुक मैम, नाइस कोई कि दे। प्रॉब्लम नहीं, आप कंटिन्यू करें अपना लेक्चर, लास्ट पे शेयर कर दी जाएंगी स्लाइड्स। थैंक यू मैम। ओके ओके फाइन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज लेसन प्लान। लेसन प्लान होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट objective is that what is lesson plan? Definition of lesson plan. The lesson plan is the process of logically organizing the teaching activities for the course or program. Lesson plan किसी भी जो भी आपने टीचिंग एक्टिविटीज करानी है, उसकी एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। what does logical organization mean? मीन्स कि आपने जो भी पढ़ाना है उसको एक लॉजिकल ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम एक सेशन आप सब ले रहे हैं लेसन प्लान से रिलेटेड। अब लेसन प्लान हो कैसे बनाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा पढ़ लें, तो हम सब देख लें, और आपको पता ही ना हो कि लेसन प्लान होता क्या है। तो एक टीचर को जो भी उसने पढ़ाना होता है, वो उस पढ़ाने के दौरान उसने सब एक्टिविटीज को एक जो लॉजिकल ऑर्गेनाइज करना होता है, तरतीब देनी होती है कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाया जाएगा, कौन सा उसके बाद, और फिर नेक्स्ट को कैसे उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। सर मैं स्लाइड्स शो कर देती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि everyone is saying slides are not visible. Doesn't looks nice के messages आते रहे, slides are not visible. मैम आप काइंडली शेयरिंग क्लोज करके ना इसे दोबारा से शेयर कीजिएगा। वैसे हमारे एंड पर तो शेयर हो रही है आपकी स्लाइड। आप लोग भी काइंडली मेरे डियर एंड पे, पार्टिसिपेंट्स, आप अपना इंटरनेट काइंडली चेक कीजिएगा, स्लाइड्स विजिबल हैं हमारे पास। क्योंकि कभी भी पहले नहीं ऐसे, अभी मैंने आपको शेयर कर दी है, जो आपने मुझे लिंक शेयर किया था ना, उनको मैंने शेयर कर दी है। आप काइंडली आगे इनके ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि फिर क्योंकि चैट बॉक्स में बार बार मैसेजेस आते रह रहे हैं, तो डजंट लुक्स नाइस, नो मैम, उधर आप कंटिन्यू कंसंट्रेशन चली करें, जाती है। आपकी स्लाइड्स विजिबल हैं, मैं इनसे शेयर भी कर दूंगा सबसे। आप कंटिन्यू करें काइंडली। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेसन प्लान इट इज the instructor's road map, just like a Google map, which tells us that where we want to go, and the Google map guides us. Just like that, in the education, lesson plan is the roadmap of the teacher, which which guides us of what the students need to learn. Students को क्या सिखाने की जरूरत है, and how it can be done effectively during the class time. Now, here I want to tell you the difference between the effectiveness and efficiency. Effectiveness का ताल्लुक गोल अटेनमेंट से होता है, और efficiency का ताल्लुक कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेना,
ये एफिशिएंसी है। और एक टीचर इफेक्टिवली कैसे क्लास टाइम के दौरान अपने सारे काम को, अपनी सारी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, ये लेसन प्लान है। एक लेसन प्लान किसी भी टीचर के लिए, एक टीचर्स प्लान होता है किसी पर्टिकुलर लेसन का, किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड टीचर जो भी प्लानिंग करती है वो लेसन प्लान कहलाता है। इन द वर्ड्स ऑफ लास्टर बी स्टैंड्स, lesson plan is actually a plan of action. It is a plan of action which tells the teacher that what to do in the classroom. It is the working philosophy of the teacher, his information about and understanding of his pupils. अब इसका मतलब क्या है कि टीचर को अपने स्टूडेंट से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके मुतल्लिक उन्हें समझ भी होनी चाहिए। Now what does this mean? It means that टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसके जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका मेंटल लेवल, उनका कैलिबर, उनकी एज, वो किस लेवल पे है, उसको वो समझ होनी चाहिए। और उसको ये पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें समझ आता है कि नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज प्यूपल्स, उसको अपने स्टूडेंट्स की समझ होनी चाहिए। तो बच्चों के चेहरे के तासुरात हमें बता देते हैं कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या जो कुछ आप बताना चाह रहे हैं वो कितना कुछ उन्हें समझ में आया। नेक्स्ट है हिज कंप्रीहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। टीचर को, उसको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ वो पढ़ा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी उसे समझ होनी चाहिए। The next is his knowledge of the material to be taught, the material which the teacher is going to teach to the students. उसका उसके बारे में नॉलेज कितना है, उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटीज कितनी है, उसको वो बताना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इन द लेसन प्लान इज हिज एबिलिटी टू यूटिलाइज इफेक्टिव मटेरियल, that how a teacher can effectively utilize the material। मटेरियल में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपकी जो भी AV एड्स आ जाती हैं आपके, जैसे अब इस दौरान हमारे पास कौन सा मटेरियल है, इंटरनेट कनेक्शन, स्लाइड्स हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनेट से आप मटेरियल लेके अपनी स्लाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो ये इफेक्टिव मटेरियल है। ये सब, all these are the different ingredients or the parts of a lesson plan. Now, typically a lesson plan is a document. Simply जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो 1 या 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होता लेंथ में, और उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं which is being splitted into different sections that describe what will happen during each day in the classroom. ये लेसन प्लान जो 1 या 2 पेजेस पर मुश्तमिल होता है, ये टीचर्स को ये गाइड करता है कि एक दिन एक क्लासरूम में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्या कुछ कराना है, उसने कैसे कराना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। all these things are mentioned in the lesson plan. Now, lesson plan is a teaching outline of the important points of the lesson plan, arranged in order in which they are to be presented. अच्छा, लेसन प्लान में आपने जो भी चीजें बच्चों को पढ़ानी है वो उसी तरह से लेसन प्लान के अंदर अरेंज करनी है जिस तरतीब से आपने बच्चों को पढ़ाना है। ये ना हो कि आप जो चीज बाद में पढ़ा रहे हो वो उसके अंदर पहले मेंशन हो, और जो पहले पढ़ा रहे हो वो बाद में मेंशन हो। तो उसी सीक्वेंस से, उसी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जिस तरह से आपने क्लास में पढ़ाना है उसी तरह से लेसन प्लान के अंदर मेंशन करना है। These are the teacher's guide. Lesson plan, in other words, are the teacher's guide. और ये कैसे प्रिपेयर होनी चाहिए? Be prepared with the textbook. Textbook के अकॉर्डिंग chapter 1, unit 1, topic 1, उसी तरतीब से आपने प्रिपेयर करना है। और उसके अंदर क्या चीजें शामिल होती है? नंबर 1, objectives, points to be made, questions to be asked, and the reference to material and next assignments। ये सारी चीजें आपके लेसन प्लान के अंदर शामिल होती हैं कि सबसे पहले आपने जो भी लेसन पढ़ाना है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने क्या क्या बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं,
आपने उस मटेरियल जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड रेफरेंस उन्हें क्या बताना है कि इसी से, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स और फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड आप जो भी आप मटेरियल कहेंगे कि आपने फलां बुक से साफ रेफरेंस के तौर पे आपने मटेरियल पढ़ना है, वो भी उसके अंदर मेंशन होगा। द लेसन प्लान इज आल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग सेशन स्टेप बाय स्टेप। लेसन प्लान इन अदर वर्ड्स ये एक ब्लूप्रिंट है जो आपको बताता है कि आपने क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ना है। लेसन प्लान में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपने खुद आंसर करना होता है, जिसका जवाब आपके लेसन प्लान के अंदर मौजूद होता है। व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं। इसके जवाब में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। टू whom am I teaching, किस लेवल को मैं पढ़ा रहा हूं। हाउ विल आई टीच इट, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला है आपका सब्जेक्ट, फिर है आप किस लेवल को पढ़ा रहे हैं, फिर कैसे पढ़ाएंगे, हाउ विल आई टीच, हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मैं कैसे जो है वो जानूंगा समझूंगा कि स्टूडेंट्स को समझ आई है कि नहीं। तो उसका जब इसका जवाब आएगा असेसमेंट। पहले क्या है कि आपका सब्जेक्ट, फिर है आपके स्टूडेंट्स का लेवल, फिर तीसरा है आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी किस तरह से पढ़ाना है, लास्ट में है कि आपने बच्चों को पढ़ाने के बाद अब जज कैसे करना है कि आपको पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं। ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लेसन प्लान के अंदर होते हैं और इसी को, इन 4 इंपॉर्टेंट चीजों को मद्देनजर रखकर कोई भी लेसन प्लान बनाया जाता है। नाउ बिफोर द स्टार्ट आपने किन चीजों को पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नंबर 1, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर 2 है प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज। अब आपने सेकेंड पॉइंट पे वो जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिटरमिन कर लिए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने कौन सी एक्टिविटीज करानी है, उनको आपने मद्देनजर रखना है। द थर्ड पॉइंट इज क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपकी जो भी अपनी एक्टिविटीज करानी है, जब क्लास में मैथमेटिक्स कराना है, स्टैट्स करानी है, इकोनॉमिक्स करानी है, फिजिक्स कराना है, कोई भी सब्जेक्ट, वेदर ABCXYZ एनी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए आपने क्लास में जो भी एक्टिविटीज करानी है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स कराना है, स्टैटिस्टिक्स कराना है, फिजिक्स करानी, तो आपने कौन सी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल मैथ्स का एक फार्मूला कराना है, उस फार्मूले से रिलेटेड बच्चों को 1-2 क्वेश्चंस बोर्ड पे सॉल्व करवाने हैं, तो आपने ये जो काम करवाना है उसके लिए एक टाइम लाइन कि कितना टाइम आपको लगेगा। द नेक्स्ट इज प्लान फॉर अ लेसन क्लोजर। अब आपने लेसन क्लोजर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आज आपने क्लास में 2 से 3-4 फार्मूलाज कराए हैं मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, तो आपने लेसन क्लोजर में बच्चों को बताना है कि आज हमने, फॉर एग्जांपल यू हैव डन मैथमेटिक्स, तो आपने बताना है कि ये फार्मूला हमने किए हैं डेरिवेटिव्स के, इंटीग्रेशन के, या अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है तो आपने बच्चों को बताना है कि ये मीन, मोड, मीडियन, इसके जो है ये फार्मूलाज हमने किए हैं। तो वो आपने एक लेसन को क्लोजर देना है, क्लोज करना है किसी पॉइंट पे। ड्यूरिंग द क्लास आपने किस चीज को मद्देनजर रखना है। शेयर द लेसन प्लान विद योर स्टूडेंट्स। जब आप अपने स्टूडेंट्स से अपना लेसन प्लान शेयर कर लेते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, इट हेल्प्स कीप देम मोर एंगेज्ड एंड ऑन ट्रैक। In this way, they will be more engaged in the class and they will be on the track. And after the class, lesson plan reflect on what worked well and why. अच्छा, अब आपने रिफ्लेक्शन मीन आपने ये देखना है कि कौन सी चीज आपने एक्टिविटीज कराई क्लास में और कैसे वो सही रही, क्यों सही रही,
एंड व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली, और आपने जो भी चीज की किस तरह से और उससे जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। देन बिफोर प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान, अब लेसन प्लान को प्रिपेयर करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। लेसन प्लान के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो या उसकी आउटलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम साथ साथ आगे उसको वन टू ऑल देखेंगे। अब लेसन प्लान को प्रिपेयर करने से पहले ये आपने देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, कि आप जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं वो किस लेवल का बना रहे हैं, उस लेवल को मद्देनजर रखकर आपने ऑब्जेक्टिव्स मद्देनजर बनाने हैं। और फिर आपने देखना है कि क्लास का टाइम कितना अवेलेबल है, आपको उस सेशन का टाइम कितना अवेलेबल है, 40 मिनट्स है, 45 है, 35 मिनट्स है। और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आपने डिटरमिन करना है कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्या जो है वो उनका कॉम्पिटेंस लेवल डेवलप करना चाहते हैं। और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर वन, आपने अपने लर्नर्स को, अपने वर्कर्स को जो टास्क असाइन किया है उस पे उनकी प्रायोरिटीज क्या है, और फिर उस उन प्रायोरिटीज में उनमें सेफ्टी एलिमेंट कौन सा इन्वॉल्व है। और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो कुछ लर्नर्स एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही मेंशन कर देते हैं और कुछ जो है वो अलग से मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस मींस के जैसे अब आपकी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, इस पूरी ट्रेनिंग का एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ये है कि आपके 50% मार्क्स आपके जो भी पीएलटी टेस्ट होगा उसमें जो है वो मार्क्स लेना लाजमी है। तो ये एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो पहले से आपने डिटरमिन कर लेना अपने लेसन प्लान से पहले। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि लेसन प्लान लिखने से पहले एक उस्ताद को क्या क्या चीजें जहन में रखनी चाहिए, व्हाट टू कंसीडर व्हेन राइटिंग अ लेसन प्लान। नंबर वन, तीन बेसिक पॉइंट्स में मैंने इनको डिवाइड किया है। नो योर स्टूडेंट्स, नो द कंटेंट एंड नो द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कम इन द फर्स्ट ईयर क्लास, FA1 फर्स्ट ईयर में, तो उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट लेवल और सब्जेक्ट अगर उसका मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अब मैथमेटिक्स से तो फिर उसको नो हाउ होती है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, बायोलॉजी तो फिर ये उनको होती है मैट्रिक में। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो उनका बिल्कुल उनके लिए न्यू है, तो एक टीचर ने उनकी एबिलिटीज और उनके इंटरेस्ट लेवल को मद्देनजर रखना है, क्योंकि टीचर को पढ़ाते हुए बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन साथ साथ रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं कि वेदर द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इन और नॉट, मीन्स कि उन्हें वो जो की वो पढ़ा रहा है वो समझ आ रही है कि नहीं। हर टीचर को समझ आ रहा होता है, तो उसको मद्देनजर रख के उस्ताद ने बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि अगर बच्चों के चेहरे के तासुरात को और उनकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट को मद्देनजर रखे बिना उस्ताद पढ़ाता जाएगा तो वो वन वे ऑफ टीचिंग होगा। टू वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस तभी होता है जब उस्ताद बच्चों के को साथ लेके चले। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अब बैकग्राउंड के लिए आप उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आपको उनके हुलिये से, आपको उनके तासुरात से बहुत सी चीजें समझ आ रही होती है, तो आपको उनके बैकग्राउंड को भी, फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी क्लास में बच्चों को जब देखते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अब कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरह का बैकग्राउंड। नेक्स्ट है अटेंशन स्पैन, तवज्जो का दौरानिया। We should keep in mind that when a student comes in the college time period, in the college at the college level, तो फिर उसका अटेंशन स्पैन 40 to 45 मिनट्स होता है। Respected teachers, I request you all, you are very respectable to me,
if you listen, all these things are related to the topic, and if you listen, you can understand. These things are important before writing a lesson plan. Ability to work together in groups. एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसके स्टूडेंट्स की ग्रुप में काम करने की सलाहियत कैसी है, कितनी है. फॉर एग्जांपल, जैसे आप सारे के सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर हम मोस्टली बीएस लेवल को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को अक्सर ग्रुप एक्टिविटीज देते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे कौन से बच्चे ग्रुप में ज्यादा एफिशिएंट हैं. तो उस्ताद को ये भी पता होना चाहिए कि उसके बच्चों की ग्रुप के अंदर काम करने की सलाहियत कैसी और कितनी है. नेक्स्ट है प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. ये दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग कि उस्ताद को पता होना चाहिए कि उसके बच्चों का प्रायर नॉलेज मीन प्रीवियस नॉलेज और लर्निंग एक्सपीरियंस उसका, जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे को बायोलॉजी की नो हाउ होगी, मैथमेटिक्स की नो हाउ होगी, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की नो हाउ नहीं होगी इतनी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स नए हैं, बिल्कुल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें बहुत से सारे सब्जेक्ट जो है वो नए हैं उसके लिए. तो उस्ताद को बच्चों का प्रायर नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के लेसन प्लान बनाना है. द सेकंड मेन थिंग इज नो द कंटेंट. एक उस्ताद को ये देखना है कि जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ा रहा है उसके बारे में उसे नो हाउ होनी चाहिए. इट मींस जैसे हम क्लास में जाने से पहले अपने कोई सब्जेक्ट टॉपिक उसको एक नजर जो देख के जाते हैं, इट मींस कि सब्जेक्ट मैटर जो कुछ आप पढ़ाने जा रहे हैं, लेसन प्लानिंग के लेवल्स में आगे हैं सारे. सारा अभी आपने पूरा लेसन देख लें, एंड में आई विल गिव यू 15 मिनट्स, देन यू कैन आस्क एनी क्वेरी. इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस. अब आपने जो पढ़ाना है उसके मतलब आपको कुछ इंस्टीट्यूशन भी गाइडलाइंस देता है. जैसे इंस्टीट्यूशन हमें गाइडलाइन देता है कि आपने अगर अगस्त से सेशन शुरू हो रहा है तो अगस्त से दिसंबर तक आपने 70% पढ़ा देना है, और जनवरी से फरवरी तक जो आपने 30%, फरवरी मार्च तक 30% कंप्लीट कराना है. तो ये इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस भी आपने मद्देनजर रखनी है. नेशनल करिकुलम स्टैंडर्ड्स, हमने कुछ हमारे कौमी मेयारात तालीम है उनको मद्देनजर रखकर हमने बच्चों को करिकुलम या निसाब पढ़ाना है. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. अब पढ़ाने के लिए साथ साथ जो आपको मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, आपके लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं विच आर कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, लोकल गेस्ट स्पीकर्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं लेसन प्लान बनाने में. फॉर एग्जांपल, अब देखें, अब हम किस चीज की मदद ले रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट की मदद ले रहे हैं, और एक सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड्स, और फिर एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इसकी मदद से ही आप ऑनलाइन आप सेशन अटेंड कर रहे हैं. ये था लेसन प्लान बनाने से पहले आपने किन चीजों को मद्देनजर रखना है. अब नेक्स्ट आ जाता है लेसन प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है. ये इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन, इट गिव्स द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द थिंग्स टू बी टॉट एंड लर्नड एवरी डे. ये आपको एक नजर देखने से ये पता चल जाता है कि आज आपने ये पढ़ना है, और ये टीचर को गाइड फ्राम करता है कि किस तरह से, कि इट गिव्स द टीचर अ स्टार्टिंग पॉइंट कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है. और लेसन प्लान हमेशा प्रीवियस टीचिंग को मद्देनजर रखकर और आने वाले लेसन्स को मद्देनजर रखकर प्रिपेयर किया जाता है. नेक्स्ट, इट गिव्स द टीचर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन. अगर लेसन प्लान टीचर ने बनाया होता है तो टीचर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन मिलती है कि उसने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये सारी चीजें फिर वो अपने आप को एक सिक्योर फील करता है. इट आल्सो गिव्स इनसाइट इनटू हाउ अ लेसन विल बी टॉट. एक लेसन कैसे पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जांपल उसके अंदर मेथोडोलॉजी मेंशन होगी, एक्टिविटीज मेंशन होंगी, फिर सारा कुछ एक टीचर को आइडिया मिल जाता है कि उसने इस टॉपिक को कैसे कराना है, इस लिमिटेड टाइम में कैसे एक्टिविटीज करा लेनी है. Next, it it helps teacher to ensure about day to day activities. ये टीचर को ये
बताता है कि डे टू डे एक्टिविटीज क्लास में कौन सी करवानी है। और लेसन प्लान की मौजूदगी में टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव भी होगी और एफिशिएंट भी होगी। इफेक्टिव मीन गोल अटेनमेंट में हमें हेल्प मदद करेगी। अलाइंस द इंस्ट्रक्शन मटेरियल विद द असेसमेंट, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को असेसमेंट के साथ मैच करती है, अलाइन करती है। एंड इट आल्सो अलाइंस द लर्निंग गोल विद द असेसमेंट, कि आपका पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको असेसमेंट्स के साथ अलाइन करती है। और लेसन प्लान की मौजूदगी में व्हेन अ लेसन वर्क्स वेल, स्टूडेंट्स नॉट ऑलवेज लर्न, दे बिहेव। एक टीचर ने अगर लेसन प्लान बनाया होगा तो ना सिर्फ वो सीखेंगे, स्टूडेंट क्लास में अच्छे से बिहेव करेंगे। इट मींस जब लेसन प्लानिंग होगी और एक क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपकी क्लास में हाई अचीवर स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे। एक गुड लेसन प्लानिंग स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को ट्रैक पे रखती है और ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टीचर्स टू अवॉइड अनप्लेजेंट सरप्राइजेस। एक टीचर को और ये हेल्प करती है कि वो अनप्लेजेंट सरप्राइजेस से अवॉइड कर सके। एंड इट प्रोवाइड्स द रोड मैप इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। Then the more important thing is it provides direction to a substitute। अगर आपने एक लेसन प्लान बनाया होगा और आप किसी भी वजह से किसी भी सिचुएशन में आप अगर कॉलेज नहीं आ सके तो ये आपके सब्स्टिट्यूट को ये हेल्प मिल जाएगी कि उसने क्लास में क्या पढ़ाना है। Then it encourages reflection, refinement and improvement। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपने जो पढ़ाया कैसे पढ़ाया और आप उसमें कैसे और बेहतरी फ्यूचर में ला सकते हैं। ये आप लेसन प्लान की मौजूदगी में जब आप रिफ्लेक्शन करते हैं तो आप अपने लेक्चर को और बेहतर करने की करते हैं। रिफ्लेक्शन करने के बाद उसको रिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। इट एनहांसेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट। लेसन प्लान टीचर की स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को एनहांस करने में हेल्प करता है। एक अच्छे लेसन प्लान की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये प्रीवियस नॉलेज को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है और इट केटर्स टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लेवल को मद्देनजर रखकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। ये इट इंक्लूड्स नेसेसरी मटेरियल, कौन सा मटेरियल, एक्टिविटीज आपने कौन सी करानी है, कैसे करानी है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज उसमें शामिल होंगी, एंड टास्क इन अ लेसन and a series of lessons, thereby helping students interact and process content differently। It means कि आपने लेसन प्लान की मौजूदगी में आप स्टूडेंट्स को आप ये बता सकते हैं कि आपने क्लास में ये एक्टिविटीज करानी है और कैसे आप एक कंटेंट को डिफरेंट वे से डिलीवर कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। द नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन प्रोसेस। लेसन प्लान की अगली खूबी ये है कि इसके एंड पे लेसन प्लान शुड नॉट ओनली बी डिस्क्रिप्टिव। ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता कि आपने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये इवेल्युएटिव भी होता है। इंडिकेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, ये इंडिकेट करता है व्हाट वर्कड एंड डिडंट वर्क इन योर क्लास एंड व्हाई। आपने क्लास में जो पढ़ाया कौन सी चीज सही रही, कौन सी चीज सही नहीं रही और क्यों सी सही रही। ये सारी इवेल्युएटिव जो एलिमेंट है ये भी लेसन प्लान के अंदर शामिल होता है। लास्ट उसकी खूबी है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं। एक अच्छे लेसन प्लान को डिजाइन करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं? गेनिंग अटेंशन, किसकी? स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करने के लिए आप एक लेसन प्लान जो है वो डिजाइन करते हैं। एंड इट इन्फॉर्म्स द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अभी पहली स्लाइड में आपने पढ़ा है कि इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये लर्नर को इन्फॉर्म करता है कि उसके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और स्टूडेंट्स को स्टिमुलस मटेरियल, कौन सी चीज है जो उन्हें स्टिमुलेट करती है कि आज क्लास में ये एक्टिविटीज होंगी, ये काम होगा, हमने ऐसे ऐसे करना है। तो ये स्टूडेंट्स को चीजें स्टिमुलेट करती हैं और स्टूडेंट्स को लर्निंग गाइडलाइन भी मिल जाती है, गाइडेंस भी मिल जाती है। फिर वो स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को इलिसिट करते हैं, शो करते हैं। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर अबाउट हिज टीचिंग, हिज और हर टीचिंग।
टीचर को टीचिंग से रिलेटेड फीडबैक मिल जाता है और स्टूडेंट्स को ये, और टीचर को साथ ही ये पता चलता है स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई है। तो ये फीडबैक टीचर को दो तरह का मिलता है। लास्ट है लेसन प्लान की मौजूदगी में आप अपनी परफॉर्मेंस को भी असेस कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी, अपनी परफॉर्मेंस किस एंगल से, टीचिंग के एंगल से, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उनकी लर्निंग के एंगल से। ये अभी एक मिस ने क्वेश्चन किया था। तो कितने लेवल्स हैं? तो ये 5 लेवल्स ऑफ लेसन प्लानिंग है। डेली लेसन प्लान जो टीचर बनाता है, वीकली लेसन प्लान जो टीचर भी बनाता है इंडिविजुअली या ग्रुप्स में भी बनते हैं, यूनिट लेसन प्लान ये टीचर मेड भी होता है या आपकी टीचर्स की या आपके डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से भी आप बनाते हैं। टर्म लेसन प्लानिंग ये इंस्टीट्यूशनल होती है, लेकिन ना टर्म लेसन प्लानिंग को ही मद्देनजर रखकर हम एक टर्म के अंदर फलां टाइम से लेकर फलां टाइम तक कितना खत्म करते हैं, और ईयरली प्लानिंग भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है। नाउ नेक्स्ट है अब इंपॉर्टेंट चीज की स्टेप्स क्या है लेसन प्लानिंग के। पहला स्टेप है आउटलाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान का पहला एलिमेंट याद रखिएगा, लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वो क्या है? व्हाट यू वांट स्टूडेंट्स टू लर्न एंड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द क्लास। आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट किस काबिल हो जाएं इस सेशन, उस क्लास, उस लेसन के बाद? तो वो किन चीजों को आंसर करता है? नंबर 1, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द लेसन? कि आपके लेसन का टॉपिक क्या है? जैसे मैं आपको साथ साथ इन सवालों के जवाब देती जाऊंगी अपने इस सेशन को मद्देनजर रखते हुए। लेसन प्लान, व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स किस काबिल हो जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट का लफ्ज है, यू ऑल आर रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो उसमें आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला, what do I want them to understand and be able to do at the end of the class? आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स लेसन के एंड पे क्या किस काबिल हो जाएं? फॉर एग्जांपल, I want that you all respected teacher be able to prepare a lesson plan related to your subject. तो ये इस सवाल का जवाब ये है, what do I want them to take away from this particular lesson? आपको उस पर्टिकुलर लेसन से अवे कौन सी चीज कर सकती है? अगर आप अपने टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे तो फिर आप अपने टॉपिक पे नहीं रहेंगे और आप उस लिमिटेड टाइम में उस लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है ना, पहला पॉइंट, पहला एलिमेंट लेसन प्लान का, वो आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। अब ना, व्हाट डज स्मार्ट मीन? In education, SMART means S stands for specific, M mean measurable, A mean attainable, R mean relevant, and T mean time based. आपने ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हैं, उस खास मखसूस टॉपिक से मुतालिक हैं, क्या वो मेजरेबल हैं, क्या वो उस लिमिटेड टाइम में अटेन हो सकते हैं, हासिल हो सकते हैं कि नहीं, उस लिमिटेड टाइम में आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं, ये भी आपने देखना है। इज द ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट टू योर क्लास एंड स्टूडेंट? क्या वो ऑब्जेक्टिव आपकी उस क्लास और उन स्टूडेंट से रिलेटेड रेलिवेंट है कि नहीं, ये भी आपने मद्देनजर रखना है। इज द ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड टू अलाइन विद द सिलेबस? क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके उस लिमिटेड टाइम में सिलेबस के साथ अलाइन करते हैं कि नहीं, मैच होते हैं कि नहीं? क्या आप देखें, ऑब्जेक्टिव्स आप हर सब्जेक्ट के सेम और हर टॉपिक के सेम नहीं होते, तो ये भी आपने यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, they should specify the new skills that the students will gain as a result of the lesson. उनमें आपने ये मेंशन करना है कि कौन सी नई स्किल्स वो सीख लेंगे। जैसे हम एक टर्म मेंशन करते हैं कि at the end of this session the students will be able to, number 1, define lesson plan, be able to prepare a lesson plan. तो ये आपने कौन सी नई स्किल, नई चीज सिखानी है उस टॉपिक से मुतालिक, वो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्टूडेंट्स अटेनमेंट, नॉट टीचर्स अटेनमेंट। आपने स्टूडेंट्स के एंगल से ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जैसे मैंने एक लफ्ज मेंशन किया, एट द एंड ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट्स विल गेन या विल बी एबल टू
ये आपने अपने एंगल से नहीं लिखने, आपने स्टूडेंट्स के एंगल से लिखने हैं। The third thing is determine the degree or criterion for satisfactory attainment of the objectives. अब आपने ये भी मुतय्यन कर लेना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का तसल्ली बख्श या सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया क्या है। फॉर एग्जांपल हम जैसे असेसमेंट में एक सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया मुतय्यन करते हैं कि जो बच्चे 33% लेंगे वो पास हैं, जो 33 से 40 के दरमियान है वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो ये आपने इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी उनकी अचीवमेंट या अटेनमेंट का क्राइटेरिया डिटरमिन कर लेना। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ अ लेसन which tells that what the student should be able to know or do at the end of the lesson that they could not do at the beginning. कौन सी ऐसी नई चीज है जो वो शुरू में नहीं जानते थे और अब वो जान लेंगे या करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये उसमें आपने खास इंपॉर्टेंट चीज मेंशन लास्ट करनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। सेकंड एलिमेंट आ जाता है डेवलप द इंट्रोडक्शन। पहला एलिमेंट आपके लेसन प्लान का आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करना है। दूसरा है डेवलप द इंट्रोडक्शन। नाउ डेवलप अ क्रिएटिव इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड एनकरेज थिंकिंग। अब आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को उन स्टिमुलेट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को एनहांस करने के लिए, उनकी थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए एक क्रिएटिव वे से अपना इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का देना है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और इंट्रोडक्शन किन क्वेश्चंस को आंसर करेगा। नंबर वन, how will I check whether the students know anything about the topic or have any preconceived notion about it? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टॉपिक से मुतालिक पहले कुछ जानते हैं या नहीं, और अगर जानते हैं तो कितना कुछ जानते हैं। What are some commonly held ideas about the topic and the students might be familiar with? कौन सी commonly held ideas हैं जो जिनसे या टॉपिक्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स ज्यादा फेमिलियर हैं। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट विल आई डू टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीन मोड मीडियन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो थ्योरेटिकली आप बताएंगे कि आपके जो मार्क्स हैं, तो जो आपके परसेंट 40% है, 50% है, 60% है, ये आपकी एवरेज भी कहलाती है और इसको मीन भी बोलते हैं। तो आप कैसे एक नए तरीके से एक क्रिएटिव वे से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। द सेकंड थिंग इज टीचिंग मटेरियल और रिसोर्सेज। सॉरी, थर्ड थिंग, पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है डेवलप द इंट्रोडक्शन, द थर्ड थिंग इज टीचिंग मटेरियल और रिसोर्सेज। आपके मटेरियल और रिसोर्सेज में सबसे पहले आ जाती है कि आपकी कोर्स बुक। नंबर टू है आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल। कोर्स बुक में आप जो आप बुक पढ़ा रहे हैं वो आपके एक क्वालिफाइड टीचर्स ने जो लिखी होती है वो आपका आपका रिसोर्स है या मटेरियल है। सप्लीमेंट्री मटेरियल में आपकी टीचर बुक्स आ जाती हैं और वर्क बुक्स आ जाती हैं। अब इसके अलावा आपका सपोर्टिंग मटेरियल भी है। वर्क बुक्स जैसे छोटी क्लासेस में होती हैं या आपकी अभी भी बच्चों की वर्क बुक्स होती हैं आपकी, जिसमें अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल वो मटेरियल जो आपको पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में हमें सपोर्ट करता है। ऑडियो मटेरियल, ठीक है, आपने कोई ऑडियो सुना दी। विजुअल, बोर्ड्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, या विजुअल मटेरियल। ऑडियो विजुअल मटेरियल आपका ये मल्टीमीडिया, इसके अलावा आ जाता है। ये सारे सपोर्टिंग मटेरियल में आ। अब ऑडियो विजुअल एड्स या सपोर्टिंग मटेरियल में आपके टीचर, इसमें आपके बुलेटिन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, फ्लैश कार्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है, अडेप्टेबल कार्ड्स हैं, ये सारे आपके सपोर्टिंग मटेरियल में आते हैं। अब ये दो पिक्चर्स हैं। अब ये पिक्चर्स शो करने का मकसद ये है कि जब आप ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से पढ़ाते हैं, इट्स माय ओन आल्सो पॉइंट ऑफ व्यू
कि इसकी मदद से बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाने में आपको मदद मिलती है। जैसे एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमने अपने ज़माने में पाकिस्तान स्टडीज़ हिस्ट्री बड़ी रोट मेमोरी से पढ़ी थी, जिसकी वजह से मेरे अपने अंदर ये ड्रॉबैक है कि हमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ये सारे कॉन्सेप्ट रटे मार के किताब पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर को सुना देते थे। अब जब आप बच्चों को एक सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से पढ़ाते हैं, जैसे एक पिक्चर में एक टीचर ये मैप्स का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को जो है वो मल्टीमीडिया की मदद से दे रही है, और इसी तरह एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट टीचर इसी तरह से मल्टीमीडिया के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू दे रहा है। इस तरह से बच्चों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कंपेयर टू दिस कि हम उनको रोट मेमोरी से बताएँ। हम जो चीज़ें बच्चों को कांसेप्ट क्लियर करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो लर्निंग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। वो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और समझ आती रहती हैं। तो सपोर्टिंग मटेरियल के अलावा नेक्स्ट एलिमेंट मैं फिर साथ-साथ रिपीट कर रही हूँ। पहला आपका था लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 डेवलप द इंट्रोडक्शन, नंबर 3 आपने इंट्रोडक्शन के बाद आपने सपोर्टिंग मटेरियल्स या आपकी एविएट्स कौन सी हैं, नंबर 4 आपका प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज। अब आपने मेन बॉडी ऑफ द लेसन, अब आपने अपना मेन टॉपिक पढ़ाना है, और पढ़ाते हुए आपने यू हैव टू गिव एग्जांपल फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ। The reason behind this is that you want to catch the attention of this more students. That's why you are giving the example from the everyday life. जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो एवरीडे लाइफ से मुतल्लिका मिसालें देकर बच्चों को समझाएं। उसमें किन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, व्हाट विल आई डू टू एक्सप्लेन द टॉपिक। आप क्या कर सकते हैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाट विल आई डू टू इलस्ट्रेट द टॉपिक इन अ डिफरेंट वे। आप अपने टॉपिक को एक डिफरेंट वे से इलस्ट्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को आप कैसे एंगेज कर सकते हैं, और कौन सी रियल लाइफ एग्जांपल्स आप अपने बच्चों को इससे मुतल्लिका दे सकते हैं। व्हाट आर सम रेलिवेंट और रियल लाइफ एग्जांपल्स दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उससे मुतल्लिक बच्चों को एग्जांपल दें। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्स पढ़ा रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने ये बच्चों को बताना है कि कौन सी चीजें हैं सेंटर की तरफ, कैसे किन किन जो है वो चीजों का रुझान होगा, और आप एक ये लॉ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बना के बच्चों को बताएंगे कि जी ऐसे मीन और मोड और ये सारी चीजें कहाँ पे फॉल करती हैं। ठीक है, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो इस तरह से इससे टॉपिक बच्चों को समझाने में ज्यादा मदद मिल सकती है। अभी तो ऐसे मेरे ज़हन में आया, लेकिन आप अपने कोई भी टॉपिक है उससे मुतल्लिक आप रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देंगे, तो वो बच्चों को चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। व्हाट विल, फॉर एग्जांपल अभी आप बहुत से अपनी ट्रेनिंग के दौरान टॉपिक्स पढ़ेंगे, पेपरा है, पीडा है, तो अब पेपरा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जब आप देखते हैं कि कॉलेजेस में आप में से बहुत से सारे सीनियर मेंबर्स हैं तो परचेज कमेटी में है, तो वो किस तरह से, तो ये आप रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट विल स्टूडेंट्स नीड टू डू टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। आप क्या चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स को टॉपिक वो कैसे बेहतर तरीके से समझ में आए। मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, तो वो थ्योरेटिकल पढ़ाने से समझ में नहीं आएगा। 2 सवाल 3 4 5 आपने बोर्ड पे किए होंगे, और फिर उसके बाद आप बच्चों को एक एक्सरसाइज घर पे करने के लिए देंगे, तो वो टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब ये मैंने इससे टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स कोट की हैं कि प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल ऐड की हैं। अब जैसे इंग्लिश है, तो इसमें हम कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीड अ पोएम एज अ क्लास एंड लीड अ डिस्कशन अबाउट इट्स सिंबोलिज्म यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस जो है ना, कम कोई आपने थॉट्स प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो है ना, आपने लिस्ट कर लेने हैं, बना लेने हैं, और फिर जो है वो बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछने हैं जब वो पोएम ऊंची ऊंची पढ़ेंगे।
Then next is split into small group to create posters that explain water cycle. आपने क्लास में ग्रुप बना दें और आपने वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है, तो आप बच्चों को बताएं कि इससे रिलेटेड पोस्टर पहले से बना के लाएं, और जब बच्चे बना के ले आएंगे, अब आप जो है वो उसकी मदद से, उस पोस्टर की मदद से बच्चों को वो टॉपिक समझाएं। दैट विल बी बेटर। आप आपने लर्निंग एक्टिविटीज करा देंगे तो आपको बच्चों को वो चीज ज्यादा देर तक, बल्कि बहुत टाइम तक वो लास्टिंग जो है वो इसका इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअली कंप्लीट अ वर्कशीट। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ी सी दूंगी। जब हम छोटे थे तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, मुझे तो याद है, मुझे पाक स्टडी चूंकि कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने रोट मेमोरी से पढ़ी। और वर्कशीट्स की मदद से जब बच्चों को हमने अपने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे उसके बाद से बड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्योंकि मुझसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन किया था, टेल मी अबाउट द ज्योग्राफी। तो चूंकि मुझे नहीं आती थी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा आई डोंट नो द एबीसी ऑफ ज्योग्राफी। तो उसके बाद से मुझे ये अच्छी तरह याद है कि जब बच्चे को वर्कशीट्स के थ्रू कराया, तो सारा कुछ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और अभी तक याद है। इसलिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों को हम एक्टिविटीज कराएं, और उन एक्टिविटीज के थ्रू, क्योंकि मेरी अपनी ये कुछ रिसर्चेस भी इसी चीज से रिलेटेड 3-4 रिसर्चेस हैं कि इंटरैक्टिव एक्टिविटीज जब हम कराते हैं, इवन सोशल साइंसेज में इंटरैक्टिव एक्टिविटीज और कुछ एक्टिविटी बेस्ड जब गेम्स के थ्रू बच्चों को कराते हैं, तो वो लर्निंग ज्यादा ड्यूरेबल होती है। नेक्स्ट है प्लान टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगला टॉपिक आ जाता है मेन बॉडी के बाद, एक्टिविटीज कराने के बाद। अब आपने ये भी देखना है कि नाउ यू हैव एक्सप्लेन द टॉपिक, अब आपने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल्स भी दे दी। अब आपने यू हैव टू चेक दैट हाउ विल यू नो दैट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को समझ में आया है कि नहीं? आपने think about some specific questions and that you can ask from your students। आपने कुछ क्वेश्चंस लिख लेने हैं और फिर बच्चों से वो क्वेश्चन पूछने हैं एक डिफरेंट तरह से। तो इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टूडेंट्स को समझ में आया है या नहीं। आपने वो क्वेश्चंस बना लेने हैं, लिख लेने हैं। नेक्स्ट एलिमेंट लेसन प्लान कहा जाता है डेवलप अ कंक्लूजन। अब आपने अपना एक कंक्लूजन डेवलप करना है। कंक्लूजन, आपने अपने टॉपिक को समराइज करके बच्चों को बताना है कि आज हमने ये किया है। आज हमने, फॉर एग्जांपल, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपने सीक्वेंस से समरी बतानी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि हमने आज सबसे पहले लेसन प्लान पढ़ा, फिर उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ लेसन प्लान पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि उसके लेसन प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपने, एक्सक्यूज मी टीचर्स, अब आपने कंक्लूड करना है, लेसन को कंक्लूड करना है, नॉट ओनली समराइजिंग द पॉइंट बट आल्सो प्रीव्यूइंग द नेक्स्ट लेसन। अब आपने उसको नेक्स्ट आने वाले लेसन के साथ भी एसोसिएट करना है, उसका भी रिव्यू देना है, प्रीव्यू देना है, मींस के पहले से बच्चों को बताना है कि आज हमने ये पढ़ा है, इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ ये ताल्लुक है, और आने वाले कल में हम इसको ये पढ़ेंगे, और पिछले के साथ भी उसका लिंक कि जी हमने कल ये पढ़ा था और ये आज हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है, और आने वाले टॉपिक के साथ उसका ये ताल्लुक है। नाउ क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम लाइन। अब टाइम लाइन क्या, कि आपने जो जो एक्टिविटीज करानी है क्लास में, वो एक्टिविटीज कितना टाइम लेंगी, एस्टिमेट हाउ मच टाइम ईच ऑफ द एक्टिविटीज विल टेक, देन प्लान फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच। अगर आपके ख्याल में एक एक्टिविटी 5 मिनट लेगी, तो आपने 7 मिनट मेंशन करने हैं। तो ये आपने प्लान फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम, ताकि आपको पता हो कि आपने इतनी एक्टिविटीज इतने टाइम में करा सकेंगे कि नहीं।
तो वो आपने उतनी एक्टिविटीज उस दिन करवानी है। व्हेन यू प्रिपेयर योर लेसन नेक्स्ट टू ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के सामने आपने उसका, अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी करानी है तो हर एक्टिविटी के सामने उसका टाइम मेंशन करना है, और बाय कीपिंग इन व्यू सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। नेक्स्ट है प्लान अ फ्यू मिनट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। ये जी, ये मैं भी अब बार बार घड़ी देख रही हूँ कि हाउ मच टाइम आई हैव, बिकॉज आई हैव टू गिव यू 15 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपने ये भी रियलिस्टिक टाइमलाइन में इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने अपने टॉपिक को एंड करने के साथ साथ क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी कुछ टाइम रखना है। ये मैंने इसकी भी एक एग्जांपल इसमें कोट की है रियलिस्टिक टाइमलाइन की, कि आपने लर्निंग एक्टिविटी अगर 1 करानी है तो इट विल टेक 10 मिनट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्टिविटी नंबर 2 करानी है तो 15 मिनट्स, और अगर एक्टिविटी 3 करानी है तो 5 मिनट्स। इट मींस आपकी ये 3 एक्टिविटीज के 30 मिनट्स जो है वो आपके लगेंगे। तो ये आपने अपने लेसन प्लान के अंदर रियलिस्टिक टाइमलाइन में इस चीज को मेंशन करना है। असेसमेंट, अगला एलिमेंट आ जाता है असेसमेंट। अब लास्ट ये एलिमेंट में कि हाउ विल लर्निंग बी मेजर्ड। असेसमेंट किस क्वेश्चन को आंसर करती है कि आपने जो बच्चों को समझाया उनकी लर्निंग को आपने कैसे मेजर करना है। सिर्फ लर्निंग को नहीं मेजर करना, बल्कि जो पहला एलिमेंट है वो भी मेजर यहाँ पे होगा। कैसे? वो ये बताएगा डिड द लेसन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, कि क्या लेसन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा है। अगर सारे के सारे बच्चों को नहीं समझ आया तो या फिर ऑब्जेक्टिव्स में गड़बड़ है, या टीचर की टीचिंग में गड़बड़ है, या ऑब्जेक्टिव्स की अलाइनमेंट ही नहीं है टॉपिक के साथ, या कुछ कहीं पे कोई ड्रॉबैक है। तो आपने ये देखना है कि डिड द लेसन मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। टीचर कैन फाइंड आउट बाय इंक्लूडिंग सम फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट। आपने कुछ असेसमेंट की फॉर्म्स को इंक्लूड करना है। इससे ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हर लेसन में थी कि नहीं थी। इफ द ऑब्जेक्टिव वाज अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि जिसमें आपने ये लिखा था कि बच्चों को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो सके, तो उसमें द टीचर माइट आस्क स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। टीचर स्टूडेंट से ये पूछ सकता है कि अंडरस्टैंड एक एक्टिविटी जो है वो आपने इस टाइम में पूरा करना है, वो एक्टिविटी इतने लिमिटेड टाइम में पूरी हो सकेगी कि नहीं, और उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेन समझ के लिए आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो उसमें असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं? इन क्लास असेसमेंट असाइनमेंट, आपने बच्चों का कि जी ये मैंने आज फार्मूला कराया, ये सब क्वेश्चन जरा इससे रिलेटेड सॉल्व करें, या बच्चों की उस प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक में ये आ जाता है। फॉर 1 मिनट क्वेश्चन आप जवाब दें जी, ये क्या इट मींस कि स्टूडेंट की अटेंशन थी या नहीं थी, और उसको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी पता चल जाएगा। क्विज भी कर सकते हैं आप, ग्रुप प्रेजेंटेशंस बच्चों को दे सकते हैं, तो इससे आप बच्चों की लर्निंग को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड रिफ्लेक्शन। अब आपको ये पता चलेगा कि आपका लेसन प्लान, हाउ विल यू क्रिएट अ मोर सक्सेस लेसन प्लान इन फ्यूचर। अब सारा कुछ आपने कर लिया, अब आपने ये देखना है कि आपका फ्यूचर का जो लेसन प्लान है वो कैसे आप और बेहतर उसे बना सकते हैं। तो अब आपका लेसन ओवर हो गया, वंस द लेसन इज ओवर, teacher can step back and take a few minutes, few notes about both their observation during the class and their own thoughts about the lesson. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, ठीक है, तो अपनी थॉट्स, तो आपको जेहन में आएगा कि हम कैसे, मैं इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से करा सकती थी, कौन सी और एग्जांपल इसमें ऐड कर सकती थी। तो इस कंपोनेंट से क्योंकि टीचिंग एक ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, तो इसकी बेस पे आप अपनी गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग में गैप्स को भी, और अपने लेसन प्लान को फ्यूचर में और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। तो उसमें किन क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे,
what worked well and what did not and why. कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी आपने क्लास में कराई वो अच्छी रही और कौन सी अच्छी नहीं रही और क्यों नहीं अच्छी रही. What did students need the most help with? किस टॉपिक में कहाँ पे उनको ज्यादा हेल्प की जरूरत थी. क्या ऑब्जेक्टिव्स वर द ऑब्जेक्टिव्स मेट बाय द स्टूडेंट्स. क्या स्टूडेंट्स ने उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया. ये सारी चीजें भी आप उसमें मद्देनजर रखते हैं. नेक्स्ट है अब आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान. अब आपके लेसन प्लान की ये आउटलाइन एक मैं आपको उसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन आपने देखना है सबसे पहले. लेसन प्लानिंग का ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में लेसन प्लान बना रहे हैं. आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, किस टीचर्स का है लेसन, किस लिए आप बना रहे हैं, किस लेवल के लिए हैं. इस कॉन्टेक्स्ट को आपने मद्देनजर रखना है. टाइम, टाइम पीरियड कितना है. 80 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स हैं, 1.5 आवर है. टाइम, स्पेस, जगह, ठीक है. फिजिकल अगर है तो आपकी स्पेस कौन सी है, कितनी है. रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है. क्या अगर अब वहां पे आपने मल्टीमीडिया से पढ़ाना है तो मल्टीमीडिया सारी फैसिलिटीज, लैपटॉप, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है या नहीं है. स्टूडेंट्स, किस लेवल को, आपके स्टूडेंट्स कौन से हैं, किस लेवल को आपने पढ़ाना है, उनकी तादाद कितनी है. इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है. डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स. अब ये ऊपर, सबसे ऊपर लेसन प्लान में ना, अभी एंड में आपको सैंपल भी दिखाऊंगी तो उसमें टाइम, स्पेस, रिसोर्स, ये सब चीजें मेंशन होंगी कि किस लेवल को आप पढ़ा रहे हैं. आपके से फर्स्ट में आपका आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन को प्लान करेंगे और क्रिएटिव वे से आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है. ठीक है. जैसे मैंने एक चीज अपने जब से पीएचडी की और उससे पहले अपने एक उस्ताद से मुतासिर होके कि वो हर चीज पढ़ाने से पहले कोई सब्जेक्ट क्यों ना हो, कुछ भी, तो वो ये रब इश्रह ली सदरी पढ़ते थे. तो अनकॉन्शियसली मेरी हैबिट ये डेवलप होती गई और मैं डेली क्लास में जो है वो इसके बगैर स्टार्ट नहीं लेती. तो ये आपने अपने इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह से डेवलप करना है ये आपने खुद सोचना है. प्लान द लर्निंग स्ट्रैटेजीज. आपने लर्निंग स्ट्रैटेजीज कौन सी प्लान करनी है. उसमें आपने स्किल कंपोनेंट को एनालाइज करना है. ये अब मैं समरी बता रही हूँ उस सारे की जो हमने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे हैं आउट लेसन प्लानिंग प्रोसेस के. सूटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजी आपने चुननी है जो पढ़ाना है आपने. जैसे मैथ्स है, जैसे स्टार्ट्स है, ये हम थ्योरेटिकली लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते. फिजिक्स है. फिर रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं. अब मेरे पास अगर इस टाइम इंटरनेट रिसोर्स ना होता, स्लाइड्स कितनी ही अच्छी क्यों ना होती, तो उसमें मेरे लिए फीजिबल नहीं था इस लेक्चर को डिलीवर करना, इस सेशन को डिलीवर करना. नेक्स्ट है डिवाइड द एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द लेसन पीरियड. अब आपने विद इन द एक्टिविटीज क्लासरूम मींस कि आपने क्लास के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है. फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपने प्रैक्टिकल कराने के लिए आपने आउटसाइड द लेसन प्लान पीरियड आपने प्रैक्टिकल वाले पीरियड में बच्चों को क्या कुछ कराना है, क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है. आपने थ्योरेटिकली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्लास में बताया कि ये गेम ऐसे खेलते हैं, बॉल ऐसे पकड़ते हैं, थ्रो ऐसे करते हैं, और अब आपने प्ले ग्राउंड में उन्हें ले जाके वो चीजें, तो वो सारा कुछ आपने अपने लेसन प्लान में मेंशन करना है. राइट आउट द लेसन प्रोसीजर सीक्वेंस. लेसन प्रोसीजर सीक्वेंस को मेंशन करना है. नेक्स्ट है आउटलाइन द लेसन प्लानिंग प्रोसेस. प्लान द समरी. अच्छा, अब आपने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अब आपने समराइज करना है. रिव्यू द मेन पॉइंट्स. हैंडआउट्स दे दें. जैसे अब आप देखें एमफिल लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, अब जब इवन हमारा सिनॉप्सिस भी होता है तो हम 1 पेज समरी एब्स्ट्रैक्ट बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इसी तरह आपने लेसन प्लान के एंड पे समरी बच्चों को बतानी है. ये हमने पढ़ा. प्लान द फॉलो अप.
फॉलो अप को प्लान करना है। उसमें हैंड आउट्स हैं, रेफरेंसेस हैं और असाइनमेंट्स। आप हैंड आउट्स बच्चों को दे दें, रेफरेंसेस जो है वो जैसे अब मास्टर्स लेवल पे, इवन ये बीएस लेवल पे यूनिवर्सिटीज में टीचर्स हैंड आउट्स देते हैं, रेफरेंसेस अपने बताएं बच्चों को, असाइनमेंट्स दें। लास्ट आ जाता है उसमें असेसमेंट। असेसमेंट प्लान करने के लिए आप बच्चों की स्किल्स को, आपने बच्चों को फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने मुख्तलिफ जो है वो उनको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जी मिस मैं एंड में अभी बस 2-3 मिनट है, एंड कर रही हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स को मैयर करें कि कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किस चीज को मैयर करना है, कैसे मैयर करना है। या एमसीक्यूज बच्चों को दे दें, कोई प्रोजेक्ट वर्क जो है वो साइंसेस में आप दे सकते हैं। अब लेसन प्लान में सबसे पहले आपने देखना है कि आपके लेसन प्लान का टाइम कितना है। सेटलिंग टाइम, टाइम सेटल करें, ऊपर टाइम मेंशन करें। इंट्रोडक्शन, प्रीवियस नॉलेज आपने जो बच्चों का पूछना है उसके लिए कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, उनके प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, या अब आपने स्टूडेंट्स की आउटपुट लेने के लिए उन्हें प्रैक्टिस कराएं, उन्हें क्लास में कोई क्लास वर्क दें, ओरल क्वेश्चनिंग करें, होमवर्क उन्हें आप कुछ असाइन करें। फिर जैसे होमवर्क असाइन में मींस कि आपने उन्हें बताना है कि ये आप मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इस फार्मूला से रिलेटेड है, उसमें ये क्वेश्चंस इस फार्मूला से रिलेटेड हैं, यू हैव टू सॉल्व इट एट योर होम। फिर वर्कशीट्स आप उन्हें दे सकते हैं। अब ये है लेसन प्लान के डिफरेंट फॉर्मेट्स। ये इस तरह से होता है लेसन प्लान। ऊपर कोर्स लिखा होता है, कोर्स कोड, डेट आप मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उससे रिलेटेड क्या हैं, इंट्रोडक्शन उसमें आपने क्या कैसे देना है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अलावा क्या कौन सी आपने मेन बॉडी ऑफ द लेसन वो आप लिखेंगे, कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स आपने कैसे कैसे, ये एक अनदर लेसन प्लान है। इसमें भी ऐसे ही आपका सब्जेक्ट, टाइटल, कोर्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपकी आपके ने कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है, मटेरियल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, और लास्ट में आ जाता है आपने कैसे कैसे बच्चों से असेसमेंट करवानी है। ठीक है, रेफरेंसेस आपने क्या देने हैं, फीडबैक बच्चों से आपने कैसे लिया, मटेरियल्स कौन से हैं। नाउ I will end the session by saying nothing is so fatal for a teacher as unpreparedness. इससे ज्यादा हमारे लिए कोई मोहलिक नहीं चीज के हम अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द मेन जज of the students. Now it's end from my side. Now I request you all people now that now let me know that where do you stand about this lesson. Do you stand at the red signal or the yellow or the green signal? Now it's your time to ask question. Respected IT person, kindly unmute the mics of the teachers. If they want to ask any question, they are welcomed to ask question related to the topic. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैडम मिसेस नबीला हमीद फ्रॉम रहीमिया खान। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है मैडम आपका, अल्लाह आपको अपने फजल के साए में रखे। मैडम मेरा क्वेश्चन जो था वो यही था कि लेसन प्लानिंग्स के कितने लेवल्स हैं, तो वो आपने अपनी स्लाइड में उसको 5 शो किया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिट प्लानिंग और टर्म प्लानिंग जो है वो सेम है और हम इनको मिड टर्म प्लानिंग टाइटल कर सकते हैं? अगर सेम है तो फिर इस तरह से 4 लेवल्स भी हो सकते हैं ये? मींस 4 लेवल्स, ये लेवल्स फिक्स्ड नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, देखिए यूनिट प्लानिंग और आपने क्या कहा, टर्म प्लानिंग। जी जी, टर्म प्लानिंग। जी देखिए, टर्म प्लानिंग तो देखें ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म
उसमें डिफरेंट यूनिट्स शामिल हैं। इट मींस कि जो हमारी यूनिट प्लानिंग है उनको ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू टर्म प्लानिंग। लेकिन टर्म प्लानिंग जो है ना ओके वो हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होती है, और अगर इंस्टीट्यूशन टर्म प्लानिंग ना करे तो हम उसको फॉलो जब नहीं करेंगे तो एक ही डिपार्टमेंट में अगर 5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं और 5 फर्स्ट ईयर के सेक्शंस हैं तो टर्म प्लानिंग हुई हुई होगी, तो टीचर अपने उस टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को यूनिट प्लानिंग मैनेज करेगा और अपने सिलेबस को विद इन द लिमिटेड टाइम वाइंड अप करने की कोशिश करेगा। It means कि unit ओके planning is a part of term planning and it is equal to the different units plan. But लेकिन unit planning जो है ना वो टीचर लेवल पे होती है और term planning इंस्टीट्यूशनल लेवल पे की जाती है। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। एनी अदर क्वेश्चन रिस्पेक्टेड टीचर्स? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साबरा सुल्ताना बात वालेकुम कर रही हूँ। अस्सलाम। जी आज जी का लेसन आपका बड़ा वालेकुम ज़बरदस्त था अस्सलाम। और मैं इससे एग्री करूँगी कि प्लानिंग जो है वो आपको हेल्प करती है टू एग्जीक्यूट योर लेसन, और आप सारा उस पर फोकस होते हैं। आपने सारे इन्स आउट उसके देखे होते हैं, और अगर जी उसमें जी कुछ थोड़ी सी ऊपर नीचे भी बात होती है स्टूडेंट्स की तरफ से या कुछ है, तो आपके जहन में साथ साथ पहले से ही चल रहा होता है, ये आप ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, आप ये बात ऐड कर सकते हैं, आप इस तरह से समझा सकते जी हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स के बिल्कुल रिस्पॉन्सेज बिल्कुल को भी ठीक है। आप मेजर कर सकते हैं जी उसी के साथ ही। तो वो प्लान पर्सन जो है ना, वो कोई भी काम हो वो उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है। वेरी वेल डन, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। जी मिस नबीला, you can share your view. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैडम, रिव्यू जो है उसमें मैं आपको बहुत एक्सीलेंट स्टेटस पे रखूंगी। बहुत सारी चीजें थीं जो मेरे जहन में थीं बट इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं थीं। मैंने अभी आपको अगर मैं रिस्पॉन्स करूं तो आई विल से कि मैं इस टाइम के ऊपर जो है वो मैं येलो लाइट के ऊपर खड़ी हूँ। कोई बट बात हो नहीं सकता मिस। है कि जब से 3 दफा यही आपकी स्लाइड्स में रीड करूं और इसको हो सकता है कि मैं 1 और 2 वीक्स में प्लान करूं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लास में करूं, तो मैं ग्रीन थैंक यू लाइट वेरी तक मच पहुंच जाऊं। मिस, थैंक यू। हाँ जी, ये इससे वेरी खुशी की क्या एक्सीलेंट। बात होगी कि आप किसी को भी कुछ बताएं और उसको वो इम्प्लीमेंट करें, मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं। क्योंकि नहीं नहीं आप कोई भी चीज सीखी हुई चीज है, चाहे आप अपने इवन स्टूडेंट से भी सम टाइम कोई अच्छी चीज कोई अडाप्ट करते हैं, तो जब वो अडाप्ट करते हैं और इसके इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इसीलिए तो हम कहते हैं उस्ताद तो इल्म फैला रहा होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक और ज्यादा अच्छी बात होती है कि वो इसी तरह इल्म फैलता है। जी जी बिल्कुल और ठीक। जरूरी नहीं है कि थैंक यू मैडम। आप इस टाइम पे ग्रीन पे हों, क्योंकि कि मैं जब अभी आप इसको बार बार किसी भी चीज को बार बार पढ़ते हैं, मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल कोट करूंगी। हमारे पीएचडी के एक कोर्स था करिकुलम डेवलपमेंट, और हमें एक उस्ताद साहब मिले पीएचडी में, तो वो बुक तो उन्होंने हमें दे दी और वो पढ़ाते थे, लेकिन रेयर रेयर वो उन्होंने आना। उस बाइबल को हम सारी क्लास कुछ 7 लोग थे, हम कंबाइंड स्टडी करनी, तो शुरू में हमें वो किताब मुश्किल तरीन किताब लगती थी, और जब बार बार हमने उसे पढ़ा तो एग्जाम्स के करीब हमें ना वो आपकी इस या रेड येलो ग्रीन की तरह फिर हमें लगा कि अब हम ग्रीन पे हैं। इससे पहले तो हमें लगता था उस जी किताब की हमें कुछ समझ नहीं है, क्योंकि एक दफा एक चीज जी को जी सुनने के बाद जब हम उसकी बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं तभी हमें उसकी जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। मैडम, एक एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा लेसन प्लानिंग से ही है, अगर आप काइंडली उसको रिस्पॉन्स कर दें मुझे, कि जब हम लेसन जी प्लान करते हैं तो उसमें लेसन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है या दोनों चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं?
दोनों आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस, अब लेसन या लेसन प्लान आपने लेसन सिर्फ कहा है, टॉपिक जी जी इम्पोर्टेंट है, लेसन प्लानिंग अब है। अब टॉपिक लेसन इज द सेम थिंग, बट लेसन प्लान और टॉपिक की लेसन प्लानिंग इम्पोर्टेंट है दोनों। क्यों? क्योंकि अगर हम लेसन प्लानिंग आपकी प्रिपरेशन है और टॉपिक आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। डिड यू गेट माय पॉइंट? कि लेसन आपका 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 टॉपिक आपका सब्जेक्ट नॉलेज है और लेसन प्लानिंग जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड प्रिपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक कंपोनेंट, एक इंग्रेडिएंट है लेसन प्लान। अब लेसन प्लान जो है वो प्रिपरेशन है आपके टॉपिक से रिलेटेड, कि आपने टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपने जो है वो प्रिपेयर करने हैं। और टॉपिक आपका सब्जेक्ट नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इस टाइम अगर इस सब्जेक्ट का जो इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है, दैट इज टॉपिक। और प्लानिंग और प्रिपरेशन मीन कि इससे रिलेटेड मैंने प्रिपेयर किया है मटेरियल के नहीं, दैट इज लेसन प्लानिंग। ओके, थैंक यू और मैडम, आई थैंक यू थिंक वेरी मच। बोथ आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज और आपका लेसन जो आपने प्रिपेयर किया है या प्लान कर रहे हैं, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जी, is there any other question? मेरे 3 सवाल थे जो मैंने इससे पूछ के अभी हल कर लिए। Any other question? वालेकुम अस्सलाम। अकीला अर्ज कर रही हूँ भावल नगर से। मेरा सवाल ये है कि एक ही टॉपिक अगर सेक्शंस की शक्ल में पढ़ाया जाता है तो अक्सर मुख्तलिफ सेक्शंस की आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है। अगर स्टूडेंट कहीं स्विच ओवर करना चाहे या एक दूसरे से मैचिंग बनती है, उससे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो इसको किस तरह ओवरकम किया जाए? मिस रिपीट कीजिएगा जरा, आपकी आवाज बिल्कुल। अगर जैसे उर्दू के सेक्शंस हैं या इंग्लिश के सेक्शंस किए जाते हैं, तो टॉपिक जो है वो हर सेक्शन में मुख्तलिफ पढ़ाया जा रहा होता है, तो इसको सिंक्रोनाइज जी। करना कि एक ही वक्त में एक टॉपिक पढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को स्विच करने में या कहीं शिफ्ट होने में, एडजस्ट करने ओके में ओके, आसानी हो। आई गॉट योर पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप यही पूछ रही हैं कि अगर 3 सेक्शंस हैं ABC और टीचर्स हैं 1 2 3, तो जी जी अब तीनों सेक्शंस और तीनों टीचर्स साथ साथ नहीं चल रहे, तो इसको कैसे वो मैनेज किया जा सकता है? तो वही है जी ना जी इसका जवाब, कि टर्म जी जी प्लानिंग को एग्जैक्टली। फॉलो करें ना, टर्म प्लानिंग को फॉलो करें। जैसे अक्सर हम टीचर्स आपस में एक डिपार्टमेंट में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस वीक में या इस मंथ में मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, दूसरी टीचर अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर यूनिट नंबर 4 पे है, ठीक है, और टोटल 7 यूनिट्स हैं, सपोज 7 यूनिट्स हैं और दिसंबर का मंथ है, और एक टीचर लेसन 4 पे है और एक 5 पे है और एक 3 पे है। इट मींस के 5 वाली की स्पीड सही है कि उसने टर्म प्लानिंग को फॉलो करते हुए 70% कोर्स करा लिया है, और जो यूनिट 3 पे है उसकी स्पीड या लेसन पढ़ाने की या तो उसका कोई
कोई छुट्टियों पे रही या किसी वजह से उसको वो फॉलो नहीं कर पाई जिसकी वजह से वो पीछे हैं, तो उसमें हमारा काम है बीइंग अ टीचर, हमने अपनी एक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रखनी है। जैसे आपस में हम डिस्कशन करते रहे मंथली में 1-2 बार कि जी आप कहाँ पे हैं और मैं इस टाइम पे किस पे हूँ। तो अगर कोई आप बहुत पीछे हैं तो उसमें आपने अपनी उस चीज को लाने के लिए फिर हमारे पास ये टीचर के एंड पे अब आ जाता है। अब आपके पास एक इसका सोल्यूशन ये है कि अब आप अपनी उसको टर्म प्लानिंग को फॉलो करने के लिए अब आप मेकअप क्लासेस लें जो पीछे रह गई हैं, और जो आगे हैं वो क्या करें कि अब अपने यूनिट रिवीजन शुरू करवा दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कराना शुरू करवा दें, कुछ किसी भी चैप्टर वाइज रिवाइज कराना शुरू कर दें, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज रिवाइज कराना शुरू कर दें, एमसीक्यूज वाइज रिवाइज कराना शुरू कर दें किसी भी तरह से। तो इससे ये होगा कि आप और आगे नहीं जाएंगे, जो बहुत सही पढ़ा रही थी, और बाकी भी आपके साथ जो है वो विद इन अ वीक आ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप रोज 1-2 पेजेस भी जो है वो अपने एक यूनिट के, उर्दू है तो उर्दू में तो आपने ज़्यादा चैप्टर कराना है, चैप्टर बहुत लॉन्ग है, तो आप उसको 2-3 दिनों में डिवाइड कर लें, ठीक है, और उसके साथ आप एक ग्रामर का पार्ट ऐड कर लें, और इस तरह से आप अपनी उस टर्म प्लानिंग को फॉलो करते रहेंगे। Thank you so much, ma'am. Is The this time is running out. welcome? Thank you so much. Welcome. Should I leave the session now? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, welcome. Thank you, respected teacher. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.